और ये आज का प्रोग्राम जो है वो करीब 1-1.25 घंटे चलने वाला है। हम लोग इसमें कई बातों पर, कई विषयों पर, टॉपिक्स पर बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे होती है, क्या कर सकते हैं, और खासतौर से हमारा जो रेफरेंस है वो ई एंटरप्रेन्योरशिप पर है। तो आप सभी लोग हमारे साथ रहें और इसको हम लोग सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम समय रखने वाले हैं। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्मृति संस्थान। दिस संस्थान इज अ ट्रस्ट which was incorporated in 2018 in memory of Professor Rajendra Singh. This is involved in patriotic activities among youth. This is spreading education for good human being, science popularization among youth, encouraging science research for rural Bharat, promoting science application for masses. And this is the, you can see the phone number and website and email address of the Sansthan. This is sponsored by Rail EduTech Private Limited. This company is having main objective of company is to promote courses for employment and upskilling, promotion of railway courses for graduate engineers and diploma engineers, promotion of IT and OT cyber security courses, promotion of automation courses, promotion of entrepreneurship program. This is the website of the organization, and this is the email address. This is the phone number. Anyone interested can contact on these numbers. मतलब वाईफाई सर्कुलर डेटा का लिए this course is also sponsored by, this webinar is also sponsored by Human Unity Movement. This movement is for organizing and helping the needy people from all walks of life, protect child and childhood, save environment, help protecting rights of the people, awareness of the legal literacy, counseling for martial dispute and harassment. This is the website of the organization, this is the email address of the organization, and this is the phone number. This webinar is being addressed by me. I'm Ajay Singh. I'm an entrepreneur since beginning. I'm a management postgraduate. I have more than 35 years of experience in software and skill development. I'm an active volunteer and for social cause. I am having a long association with Ekal Movement, which is running 1 lakh 1 teacher school in the villages of the country. I'm also founder director of the Rail EduTech Private Limited. So this whole webinar will be addressed by me. We will put some time for in the last for the question and answer. So I'm coming directly to the webinar. Is my video visible? I'm not able to see my video. Yes, sir. Yes, sir. Your video is visible. Okay. But why I'm not able to see my video myself? Chalo. Anyways. Now it's okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a moment. गौऱ्या आता 8,000 रुपये 8,000 रुपयाची दारू साइड में ये बंद कर दीजिए जरा, जो लोगों का ये आ रहा है। हाँ सब Sir, what is the profile of the audience? Can we little bit understand? I think the audience is a mixed audience. Some are graduates, engineering graduates, some are non-graduates, non-engineering graduates.
So because we have sent this message to all the population which was available with us. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो सर के बिहाफ में मैं रिक्वेस्ट करूं कि अगर हम अपना वीडियोस ऑन रखें, सर इज इट ओके? हाँ हाँ, कभी कभी बैंडविड्थ इशू होता है। हाँ, Sahil, I am not able to share my screen. Sahil? Just a minute, sir. किसी भी चीज को समझने समझाने के लिए जब तक आई टू आई कांटेक्ट न हो, उसका टीचर को भी वो मजा नहीं आता है और आपको भी उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। Correct. Sir, you are the host already. But I am not able to share my screen. And I think we should thank those who are already with video on. सत्येंद्र जी का अभी ऑन हो गया है, अवंतिका पहले से ऑन ही था। अरे भाई ऐसा ना कर। So, begin. As I already told, हमारा आज का जो टॉपिक है, how to be an e-entrepreneur. I'm calling it, this is a workshop for the dreamers, those who can dream to be an entrepreneur, who dream to be doing something which is not as per the you can say not as per their traditional work, who can think of something new. So I'm starting this thing. So this is my first question is, do you dream? That is the first and foremost question. Anybody would like to answer? Yes, sir. We all Tell me. like we dream for a. So see, different people have different dreams, but in my case, just looking to build a company. Company of what? Company of a problem statement that I'm trying to solve in edtech space to empower the skills and create job. Okay. Is there anybody else who would like to tell something? Gyanenji, do you dream? You can share your dream. You can share your dream, not a problem. Gyanenji is a ex-captain of Merchant Navy. Definitely, and, sir. very active in the social field also. Yes, please. थैंक यू सर, नाम से बोलने के लिए। डेफिनेटली ड्रीम्स तो होना ही है और हैं, मेरे भी काफी बड़े ड्रीम्स हैं। उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज टू एजुकेट द यूथ, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ और भी करना चाहता हूँ। बट एक छोटा सा स्टोरी ये बोलना चाहूंगा। एक 110 ईयर ओल्ड, प्रोबेबली 113 हो गया है वो, उनका एज अभी। शी इज अ पद्मश्री अवार्डी। she has been awarded Padma Shri for planting trees. वो कर्नाटका में बैंगलोर से 80 किलोमीटर दूर रहती हैं। At the age of 110 she had the dream of building a hospital. तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि at the age of 110 she had a dream, और हम लोग यहाँ तो बहुत ही बच्चे हैं उनके सामने। We all should have a dream. अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि ड्रीम होता क्या है? ड्रीम तो सबके पास है, पर ड्रीम होता क्या है? एक तो ड्रीम हम लोग जो नॉर्मली समझते हैं वो ड्रीम ये है कि जो हम लोग सपने में देखते हैं, जब सो जाते हैं और हम कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ हमारे थॉट चलते हैं, तो हम लोग उसको ड्रीम समझते हैं। पर जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने ड्रीम को डिफाइन किया है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब ये इतनी बढ़िया डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि सपने वो नहीं है जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, वो आपको इतना बेचैन कर देते हैं कि आप उन सपनों को अचीव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दिन और रात अपना जो समय है और जो अपना थॉट प्रोसेस है आप उसमें स्पेंड करते हैं। दैट इज द ड्रीम। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रीम विच वी टेक इन द नाइट, सोते समय। हम लोग उस ड्रीम की बात कर रहे हैं जो हमको सोने नहीं देते, ऐसे ड्रीम की बात करते हैं, ऐसे सपनों को सच करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो
all our dreams can come true provided. ये फोटो कोई पहचानते हैं? Anybody? ये फोटो है वॉल्ट डिज्नी का। हम सब लोगों को पता है डिज्नी साहब के बारे में, डिज्नी पार्क और डिज्नी के टॉय सब लोगों को फेमिलियर हैं। देखिए, इन्होंने 48-50 साल की उम्र में ये कार्टून क्रिएट किया, एक पार्क क्रिएट किया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। आज की तारीख में ये $multi-billion का इनका ब्रांड है और सब लोग इनको जानते हैं वॉल्ट डिज्नी के नाम से। डिज्नी बच्चों के बीच में तो खासतौर से बहुत पॉपुलर है। इनके कार्टून मेरे ख्याल में सभी लोग देखते ही हैं टेलीविजन पे। जो बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे देखते होंगे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी साहब के बारे में सब लोग जानते हैं। तो ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। अगर हमारे अंदर इतना साहस हो कि हम उन अपने ड्रीम्स के बारे में काम कर सके, तो ड्रीम सत्य हो सकते हैं। ड्रीम कैन बी अ रियलिटी। जो लोग बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल बीटेक वालों के लिए है। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो क्या है कि कोई नौकरी मिल जाए और मजे करते रहें और अपना जो रूटीन का काम है वो करते रहें। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि वर्क हार्ड एंड रियलाइज योर ड्रीम। आप नौकरी करते रहें, किसी बॉस के ड्रीम को सिद्ध करते रहें, किसी बॉस के ड्रीम को रियलाइज करते रहें, क्योंकि जो जिसके यहाँ भी नौकरी करेंगे उसके यहाँ भी क्या करेंगे, आपको अपने काम के पैसे मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दैट विल बी द प्लेस वेयर यू विल बी रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ योर बॉस, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो दोनों उपाय हैं। एक उपाय तो ये है कि आप किसी के लिए काम करें और उसके ड्रीम को रियलाइज करें और उसके लिए आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा आपका ऑप्शन ये है कि आप अपना काम करें, अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के अपना ड्रीम रियलाइज होगा नहीं। बाबू वाला काम तो नौकरी करके हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास वो है कि आप एंटरप्रेन्योर बने और बजाय जॉब लेने के जॉब देने वाले बन जाएं। नाउ द क्वेश्चन इज कि एंटरप्रेन्योर क्यों बने। तो अगर इस सवाल का जवाब लेना हो तो इसका जो क्या क्या हमारे पास इंसेंटिव है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सबसे पहली बात तो है बी योर ओन मास्टर। आप अपने मालिक खुद होते हो। आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने मालिक हो। सेकेंड इज द स्काई इज द लिमिट फॉर ग्रोथ। जब आप किसी की नौकरी करते हो तो आपको पता है कि 2 साल बाद ये होने वाला, 4 साल बाद ये होने वाला, 10 साल बाद हमारी पोजीशन सुपरवाइजर से मैनेजर की हो जाएगी। लेकिन जब आप अपना काम करते हो तो स्काई इज द लिमिट। कहाँ तक पहुंचोगे, कितनी मेहनत करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू कैन अचीव एनी हाइट which you have imagined for yourself, and also you can be source for the inspiration for the generations. आपको पता है धीरू भाई अंबानी की कहानी, धीरू भाई अंबानी की कहानी पता है आपको। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल भी भरा, यहाँ से विदेश गए थे अमन, वहां पर जाकर के उन्होंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा और भी तमाम सारे छोटे मोटे काम किए। आज की तारीख में रिलायंस नाम की जो इंडस्ट्री है, उनकी जनरेशंस के लिए इट इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया एंड इट इज इन फर्स्ट 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड। और ये धीरू भाई अंबानी की मेहनत का नतीजा है कि आज वो कंपनी इतनी बड़ी हुई है और अब उनकी जनरेशंस जो हैं उसके ऊपर काम करेंगी, उसका मजा लेंगी। यू हैव द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। कोई टाइम की लिमिट नहीं कि हमको 8 से 10 काम करना है, 10 से 5 काम करना है, 8 से शाम को 8 बजे तक काम करना है, रात में काम करना है, दिन में काम करना है। सो यू हैव फ्लेक्सिबल लिमिट बिकॉज यू आर योर ओन मास्टर। Moreover, you create an opportunity for the job for others instead of asking to the employers, give me job, give me this much money, I want these conditions. So you become your own boss and you create job opportunities for others. Then you have to lead your organizations. So entrepreneurs are the leaders who lead their organization, who work for their dream. और एक ये कहते हैं लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। तो आपको ये तय करना है
कि आप किस में फॉल इन करते हैं। आप जॉब वाला वे आउट फॉलो करते हैं या दूसरा रास्ता करते हैं कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी लिमिट्स हम खुद तय करेंगे, अपने लिए हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करेंगे। नाउ why to be an e-entrepreneur? I am talking here about the e-entrepreneurship. See, there are two types of entrepreneur. One is a brick mortar entrepreneur and another is the e-entrepreneur. So this session is devoted to the e-entrepreneurship. E-entrepreneurship क्या उसका एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है, the age of e-skills have plenty of opportunities. आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हम लोग उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। Risk are less, investment is also very low. It is good to get the job, but it is better to be an employer. And jobs are limited. Opportunities in job are also limited. Therefore, if you decide to be an e-entrepreneur, then you can see there are a lot of opportunities which are waiting to happen. Entrepreneurs make things happen. They are individuals who conceptualize the idea and convert it into the reality. They become the champions of new process and they are engines of the change. Entrepreneurs occurs in all areas of life. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको कल बिजनेस करना है। ये बिजनेस में हो सकता है, एकेडमी में हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, एनजीओ में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां पर और किस पोजीशन में अपना सारा टाइम और अपनी एनर्जी को लगाते हैं और आप अपने ड्रीम को रियलाइज करते हैं। Now a very simple question is, what is the objective? Then objective could be, it may be for money, it may not be for money. आप आश्चर्य करोगे कि भाई इंटरप्रेन्योरशिप करें तो मनी के लिए क्यों नहीं हो? यस, मनी के लिए होना जरूरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप, आप एंटरप्राइज जो कर रहे हो वो आप पैसे के लिए ही करो। पैसे के लिए भी हो सकता है, नॉर्मली पैसे के लिए ही होता है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे के लिए ना कर रहे हो। हम लोग इसको क्यों, ये सिचुएशन कैसे आती है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड दिस कुड बी फॉर पैशन और इट कुड बी प्रोफेशन. It is especially in respect of the e-entrepreneurship. Then this could be full-time and this could be part-time also. This could be as a part of the CSR. जैसे हमको पता है कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही जो ISR का कॉन्सेप्ट है वो है कि हमारी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है. तो somebody can be e-entrepreneur for fulfilling the ISR requirement, individual social responsibility requirement हो सकता है. दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि ये इट कुड बी इन ग्रुप एंड इट कुड बी इंडिविजुअल, बोथ वेज. अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. Then it can be in shape of entrepreneur or it could be in shape of intrapreneur also. सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करोगे, उसके ऊपर आप लोग ये सारी चीज बिल्टअप करोगे. Then there could be small contribution for big work. ये कैसे होगा ये भी हम लोग आगे डिस्कशन में इसको पूरा डिस्कस करते हैं. Now what defines an entrepreneur? An entrepreneur is someone who has an idea and who works to create a product or service that people will buy and makes organization to support that effort. An entrepreneur takes on most of the risk and initiative for their new business and is often seen as a visionary or innovator. जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि इसका कोई ड्रीम होगा, कोई ड्रीम रियलाइज करने के लिए करना है, और वो ड्रीम ट्रेडिशनल फील्ड में भी हो सकता है और नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में भी हो सकता है, इनोवेटर भी हो सकता है. देयर कुड बी अ ब्रिक मॉर्टर एंड ई एंटरप्रेन्योर. तो दो तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं. एक तो ब्रिक मॉर्टर एंटरप्रेन्योर जिसमें बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी, ऑफिस होगा और तमाम सारी चीजें होंगी, और एक ई एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होगा, आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कोई दोस्त और आपका कोई ग्रुप हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या आप अकेले हो सकते हो. ये इन सारी कंडीशन में पॉसिबल है. तो लेट अस सी हाउ एन entrepreneur is being defined. A person who organizes, manages, controls and assumes the risk of an electronic business or e-enterprises. तो इसमें एसेंशियली हम लोग जब e-enterprise की बात कर रहे हैं, e-entrepreneur की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द e-enterprises.
An e-entrepreneur runs a venture that uses internet-related technologies and the advantages of ICT, Internet, Computer and Technology. ICT stands for Internet, Computer and Technology, to develop new products and services or to add value to the existing ones. Essentially, this value offer was only made possible through the development of the information technology. अब आजकल का जो जमाना है केवल इसी जमाने में पॉसिबल, शायद आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ये इतना आसान नहीं था, बट अब आज ये आसान है, क्योंकि अब आज की तारीख में जो इंटरनेट की फैसिलिटीज है, कंप्यूटर की फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज है, ये काफी अवेलेबल है. एंड नाउ इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय एवरीबॉडी. एनीबॉडी हु इज हैविंग द स्मार्टफोन, ही हैज द इनफ नॉलेज टू स्टार्ट एन ई-एंटरप्राइज. What are the advantages of being an entrepreneur? Number one, it has got the scalability. बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं. It is adaptability, accessibility and profitability. ये चार इसके बहुत जबरदस्त एडवांटेज हैं. कोई बहुत ज्यादा आपको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए स्केलेबिलिटी के लिए. एडॉप्टेबिलिटी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी से भी होना बहुत जरूरी नहीं है. एक्सेसिबिलिटी का हाल ये है कि दिल्ली बंबई तो छोड़िए, आपको दूर सुदूर गांव में, सुदूर एरिया में भी आप इसको कर सकते हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है. और प्रॉफिटेबिलिटी सर्टेनली उसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है. आपने देखा बहुत सारे जो अभी आजकल एंटरप्राइज हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, फिजिक्स वाला, अगर आपने नाम सुना हो, वो 100 करोड़ से बड़ी कंपनी हो गई है. क्या काम करते हैं? उन्होंने इंजीनियरिंग पास करी और इंजीनियरिंग पास करने के बाद उन्होंने फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. और पहले तो कुछ फिजिकल पढ़ाया, फिर उसके बाद भी उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ाना शुरू किया थ्रू यूट्यूब एंड जूम. और आज की तारीख में वो कंपनी 100 करोड़ से बड़ी कंपनी हो गई है. उसका एक वेब सीरीज भी आया है, उसको भी आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को मजा आएगा. Now the question is what it takes to be an e-entrepreneur. E-entrepreneur होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो एक तो सबसे पहली बात जो सबसे पहले शुरू में बात हुई थी, a dream to do the things differently, courage to take initiative. जो fear of failure है उससे ऊपर आना पड़ेगा. एक्चुअली फेल्योर उतना कष्टदायी नहीं है जितना फियर ऑफ फेल्योर होता है. आदमी करता ही नहीं है, अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं आना चाहता. और उसका जो कारण है वो ये है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं लोग हंसे नहीं हमारे ऊपर, कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग हमें देख के कह रहे अच्छा आप बड़े एंटरप्रेन्योर बनने चले थे. तो ये जो फियर ऑफ फेल्योर है ये हमको रोक के रखता है. देन विजन टू सेट द गोल एंड पैशन टू अचीव. अगर आपके पास अपना कोई आपका विजन है वाकई में और उसका पैशन है आपके पास उसको अचीव करने का, तो सर्टेनली आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मजा करेगी. वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट. मतलब इट कैन स्टार्ट विद इवन 10,000 20,000 से लेकर के और आपके अप टू मेनी करोड़, बट इट कैन स्टार्ट विद 10,000 20,000 ऑल्सो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम. और सबसे बड़ी बात है विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल. हम दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा करने की इच्छा रखते हैं. हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ सकते हैं, कंफर्ट जोन के बाहर आके काम कर सकते हैं. अगर ये हमारी हिम्मत है तो सर्टेनली हमारे लिए ई-एंटरप्रेन्योरशिप के डोर हमारे लिए खुले हुए हैं. कुछ आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जो जिन्होंने ई-एंटरप्रेन्योरशिप करी और आप देखिए वो कितने बड़े, कितने फेमस हुए, कितने बड़े हुए. बायजूस का नाम मुझे लगता है सारे स्टूडेंट ने तो सुना ही होगा. क्यों भाई? अपना स्पीकर म्यूट करके बताइए, बायजूस का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर. ये एक श्रद्धा शर्मा है, ये योर स्टोरी करके एक पोर्टल चलाती हैं जो इनकी अपनी इंटरप्राइज है. इन्होंने इंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने अपनी योर स्टोरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है. तो इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी ये स्टोरी पब्लिश करते हैं. ओयो का नाम मुझे लगता है हर एक ने सुना है. यस. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कोई होटल नहीं बनाया. आज की तारीख में इनका सबसे बड़ा होटल है, सबसे ज्यादा नंबर इनके पास होटल है. लेकिन इन्होंने कोई होटल नहीं बनाया, होटल्स को एग्रीगेट किया और होटल को एग्रीगेशन करके और आज की तारीख में इंटरनेट के ऊपर आपके क्या नाम है, मोबाइल ऐप के ऊपर होटल बुक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं.
रितेश अग्रवाल साहब। हाँ, पेटीएम के बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं, हम लोग बहुत सारे पेटीएम करते ही हैं दिन भर। यस। जिन लोगों का शोर आ रहा है जरा वो लोग अपना वीडियो म्यूट कर ले भाई। ये दो बच्चे हैं, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जिसका ऐप डेवलप करके इन दोनों बच्चों की उम्र 15-17 साल है, और ऐप डेवलप करके इन्होंने अपनी कंपनी को 30-40 करोड़ तक पहुंचाया है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत है और ये एंटरप्रेन्योरशिप का ये पोटेंशियल है। यहां पर कोई दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? लास्ट कॉलम Yes, sir. Yes, sir. कौन है यहाँ पर? मैं। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आप लोगों में से जो देख रहा है वो कोई भी हो सकता है। अगली बारी जब हम इसका वेबिनार करेंगे तो आपकी फोटो भी यहाँ लग सकती है। ये इस एंटरप्रेन्योरशिप की खासियत है। अब सवाल यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कैसे होगी? एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होगी किसी अच्छे आइडिया से। कोई एक ऐसा आइडिया जो आपको लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। देयर आर कस्टमर्स टू अप्रिशिएट योर प्रोडक्ट, आइडिया एंड सॉल्यूशंस। द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड योर कस्टमर बोथ। आपको पता है आज की तारीख में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें सारे ई एंटरप्रेन्योर हैं और ई एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या किया इन्होंने? आइडिया को बनाया, आइडिया को विजुलाइज किया और उसके लिए काम किया, और आज की तारीख में इसको खरीदने वाले हैं, इसलिए इनका एंटरप्राइज इतना बड़ा हो गया है। नो नीड टू फाइंड ऑलवेज ए न्यू आइडिया, इवन ए ट्रेडिशनल आइडिया कैन वर्क वेल। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कोई इनोवेशन किया जाए, कोई बहुत नया आइडिया, कोई बहुत बढ़िया आइडिया लाया जाए। ये उसमें भी काम कर सकता है जो कोई पुराना आइडिया है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया फिजिक्स वाला, ट्यूशन पढ़ाने का काम है। ट्यूशन पढ़ाने का काम कैसे इंटरनेट पर किया जाए और कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, इस विषय को लेकर के उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी मिस्टर पांडे ने खड़ी कर दी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऑलवेज ए न्यू आइडिया हो। इट कुड बी अ ट्रेडिशनल आइडिया विच कैन वर्क वेल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हर आदमी को आइडियाज तो खूब आते हैं, और आपको पता है हर आदमी को 1 मिनट में 60 से ज्यादा आइडिया आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इतने आइडियाज आते हैं तो व्हेन एन आइडिया बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, क्या क्राइटेरिया है कि हमारा आइडिया तो है हमारे पास, अब उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि वो आइडिया हमारा काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट इज वर्थ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज का आइडिया ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया? A good idea may not be an opportunity. An idea is an opportunity only when it creates or adds value to the customer. आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? आपके जो सोल्यूशन आप ऑफर कर रहे हो वो सोल्यूशन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है क्या? उस कस्टमर उसके लिए आपको कोई पैसे देने को तैयार है क्या? Does it solve this significant problem, remove the pain point and meets a demand? Has a robust marketing and profit margin, and is it good fit with the founder and management team at the right time and place? That is the very big question. तो कोई आइडिया जो है वो अपॉर्चुनिटी कब बनेगा? जब आप उस आइडिया को इन क्राइटेरियाज पर आप तय करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आइडिया आ गया, अब आइडिया का वैलिडेशन कैसे किया जाए? क्योंकि आइडिया तो बहुत सारे आते रहते हैं। अब आइडिया के वैलिडेशन का भी एक बड़ा सवाल है। तो आइडिया वैलिडेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि राउट डाउन योर प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट, फाइंड आउट हु इज योर कस्टमर, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू सॉल्विंग, हाउ डज योर प्रोडक्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके कंपटीटर हैं, जो दूसरे लोग हैं, क्या उस प्रॉब्लम को ऑलरेडी उसके लिए कोई सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं? अगर ऑफर कर रहे हैं तो उनका क्या सोल्यूशन है और आपके सोल्यूशन का क्या एडवांटेज है ओवर द आइडिया ऑफ द योर कंपटीटर्स। Then find the truth by getting out the test your assumptions. क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपके कुछ assumption होते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हमको इस तरीके के कस्टमर मिलेंगे, इस तरीके के लोग मिलेंगे, और ये जो हमको लोग मिलेंगे उन लोगों को हम अपना ये आइडिया ऑफर करने वाले हैं। तो find the truth by getting out the
एंड टू टेस्ट योर एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशन हमने लिए हैं और उन एजम्पशंस की जो टेस्टिंग है वो करना जरूरी है। फिर जब कोई आइडिया आया तो उसको आप अपने जो आपका नेटवर्क है, जो आपके पास ऑलरेडी लोग हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उनके साथ डिस्कशन करना और उनके साथ अपने आइडिया को वैलिडेट करना कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ में हैं, जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हो, जो आपको जानते हैं, उनके साथ स्टार्ट योर आइडिया डिस्कशन with your local network, the people which you are having। फिर उस आइडिया को लेकर के आप कुछ कस्टमर्स का इंटरव्यू कर सकते हो, जो वुड बी कस्टमर्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हो। ऐसे कस्टमर्स का इंटरव्यू ले सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो और उनसे बातचीत करने से आपको पता लगेगा कि जो बात आप कह रहे हो, जो आइडिया आप ऑफर कर रहे हो, वो उनको सूट करता है, नहीं करता है, या उनको आइडिया सूट करता है तो किन कंडीशंस में सूट करता है, उसके लिए क्या प्राइस होगा, उसके लिए क्या वो आपके आइडिया में कुछ और नई चीजें वो चाहते हैं कि ऐड हो जाएं। तो वो सारी बातें आपको, अगर आप इंटरव्यू विद द कस्टमर करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देन यू आस्क व्हाई यू वांट टू डू दिस। व्हाई इज द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क। विद इट यू कैन गेट क्लोजर टू द ट्रूथ फ्रॉम द कस्टमर। क्या है उसका कारण, क्यों उसे आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्यों उसे आपकी सर्विस खरीदनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। अगर ये आपको ईमानदारी से आंसर मिल जाए तो आपके आइडिया का अच्छा वैलिडेशन हो सकता है। फाइंड द वैल्यू प्रपोजिशन। आपका जो आप ऑफर कर रहे हो वो क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है कस्टमर्स के लिए। देन लिंकिंग योर आइडिया इज नॉट द सेम एज बाइंग योर प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कस्टमर हाँ कर सकता है, लेकिन हो सकता है जब आपका आइडिया बन करके आए तो वो खरीदने के लिए तैयार ना हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उस आइडिया को वैलिडेट करना, और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर वो आपको हाँ भी कर रहा है तो भी वो आपका कस्टमर हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वैलिडेटिंग ए प्रोडक्ट आइडिया विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। आज वो हाँ कर रहा है, जब आपका 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब आप उस प्रोडक्ट के साथ आओ, आइडिया लेकर के आओ, तो हो सकता है कि वो आपको, वो आदमी, पर्टिकुलर आदमी जिससे आपने हाँ करा था, वही आदमी उसको खरीदने को तैयार ना हो। तो इसका थोड़ा एक बड़ा सैंपल लेकर के, बड़े कुछ ज्यादा नंबर आप लोगों के साथ बात करके और इसके आइडिया को वैलिडेट करना अच्छा होगा। तो ये आइडियाज इस तरीके से वैलिडेट किए जा सकते हैं। और बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को लिखना, उसमें क्या हम वैल्यू ऑफर करेंगे ये देखना, और उसके बाद में जो आपके नेटवर्क में लोग हैं उनसे बात करना, इसके बाद में जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं उनसे बात करना। और इतना करने से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपका जो आइडिया है वो एंटरप्राइज में बदलने लायक है, उस पर काम करने लायक है या नहीं है, या उसमें रिस्क ज्यादा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये मिस्टर कुणाल शाह हैं। इन्होंने कोई 12 साल 15 साल पहले 2010 के आसपास एक कंपनी बनाई जिसमें फ्री रिचार्ज करने का इन्होंने काम किया। फ्री रिचार्ज का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इंटरनेट के थ्रू एक शॉप खोली अपनी, और उसमें उस पर इन्होंने कहा कि आप जो है जितनी वैल्यू का रिचार्ज करते हो कस्टमर का, आपको पता प्रीपेड जो चार्ज होते थे, प्रीपेड जो होता है एयरटेल का और इसका वोडाफोन का, उसका इन्होंने क्या सर्विस ऑफर की कि आप हमसे 100 रुपए का रिचार्ज करा लो, हम आपको 100 रुपए के कूपन दे देंगे। और कूपन किस चीज के होंगे, बरिस्ता के, मैकडोनाल्ड के, बास्किन रॉबिन के। यानी आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का आपने चार्ज किया, तो उसका जो वॉइस मिलना है, डेटा मिलना है, वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको उन्होंने 100 रुपए के बराबर का उन्होंने पीवीआर का या बरिस्ता का या मैकडोनाल्ड का इन्होंने आपको कूपन दे दिया। अब ये कैसे ये कर पाए, ये समझने की बात है। इन्होंने क्या किया कि मैकडोनाल्ड और बरिस्ता से एक टाई अप किया कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे। अब क्या होता है कि आपको मान लीजिए आपने 100 रुपए का रिचार्ज किया, 100 रुपए का आपको कूपन मिल गया। अब आपने घर में बताया कि भाई हम 100 रुपए का कूपन हमको मिल गया है बरिस्ता का, और हम जो है वो चलते हैं, या बास्किन रॉबिन का हमको कूपन मिल गया, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो आइसक्रीम खाने आप अकेले तो जाओगे नहीं, पता चला घर के 3 लोग 4 लोग आपके साथ गए। तो आपने क्या किया, बास्किन रॉबिन में जाकर के आपने 4 आइसक्रीम खरीदी। एक आइसक्रीम का पेमेंट तो हो गया आपके कूपन से जो आपको फ्री में मिला था, और 3 आइसक्रीम का आपने पेमेंट कर दिया। तो वो जो उनका मुनाफा हुआ बास्किन रॉबिन का 3 आइसक्रीम बेचने से, उससे इन्होंने अपने चौथे कूपन की कॉस्ट निकाल ली। तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये कितना बढ़िया आइडिया है, आप देखिए कि आप 100 रुपए का चार्ज कराइए, 100 रुपए का आपको कूपन मिल जाए।
तो उसकी दुकान में तो लाइन लग जाएगी। ये काम इन्होंने किया और 2010 में किया। आज की तारीख में इनकी कंपनी 2014 में किसी बड़ी कंपनी ने, फ्लिपकार्ट वगैरह ने एक्वायर कर ली थी और 400 करोड़ रुपए में अपनी कंपनी इन्होंने बेची। जस्ट ए वेरी सिंपल आइडिया, कुछ कंपनियों के साथ मार्केटिंग टाई अप और कूपन रिचार्ज। इसके बाद में मैं आपको और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से मिलवाता हूं। यह है अभिनंदन कुमार। इन्होंने, जो लोग बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए एक वेबसाइट शुरू की। पहले क्या होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तमाम सारी, पहले इतना ज्यादा वेबसाइट और ये सारी अवेलेबल नहीं होती थी, तो बहुत सारी चीजें आपको परचेज करनी पड़ती थी, अखबार देखने हैं, ये देखना है, और उसके लिए तमाम सारे पैसे खर्च करने हैं, उसका फॉर्म भरना है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई entrancezone.com और वहां पर इन्होंने इन बच्चों को टारगेट किया जो बच्चे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, और उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, मेडिकल करना चाहते थे या MBA करना चाहते थे, उन बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज एक अपने पोर्टल पर अवेलेबल करा दी और वहां से इन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की। आज की तारीख में ये कंपनी भी 30-40 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है। अब मैं आपको, आप में से ज्यादातर लोग क्या, मुझे लगता है सभी लोग जो ऐप वगैरह यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसमें न्यूज के आप देखते हैं बहुत सारे ऐप आते हैं। एक कंपनी इंश्योर्स ग्रुप करके है। ये कंपनी क्या करती है, 3 लोगों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया, अनन्या पांडे, अजय इकबाल एंड दीप्ति पुरक्यास्था। इन्होंने क्या किया कि इतना सारा न्यूज आ रही, इतनी सारे समाचार आ रहे हैं, इतना पढ़ने का लोगों को टाइम नहीं है, तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा इंश्योर्स। और जो भी घटनाएं हुई हैं दिन भर में, उन घटनाओं की समाचार को कलेक्ट करके और उसका शॉर्ट में उन्होंने सारा बनाया। ये कहते हैं 60 सेकंड में आप हमारा ऐप देख लीजिए, हमारा वो देख लीजिए, हम 60 सेकंड में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं देश में और विदेश में, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। और अभी स्थिति ये कि 2013 में इन्होंने शुरू किया था, आज की तारीख में इनके पास 4-5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास, और ये लोग जो है अपनी न्यूज उनको सब्सक्राइब करते हैं। टोटल फंडिंग इनको मिल चुकी है $164 मिलियन की, और ये यही नोएडा में कंपनी है जिसके थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये जो ई एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम है, ये बड़ा मजेदार है। बहुत पैसे नहीं चाहिए, बहुत रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कोई टीम नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं खरीदनी है, फैक्ट्री नहीं खरीदनी है, मशीनें नहीं लगानी है, एंड इट कैन बी डन विद अ वेरी वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ रिसोर्सेस। आप सभी लोग YouTube तो खूब देखते ही हैं, क्यों भाई? हेलो, am I audible? जी सर, देखते हैं। YouTube देखते हैं और ना? चैनल भी है। चैनल भी है। यस और सर, देखिए देखते हैं। यूट्यूबर जो हैं, ये 5 यूट्यूबर मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान के, जो करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं। ये भुवन बाम साहब हैं, इनके शॉर्ट वीडियो आते हैं और ये करीब 1 करोड़ रुपए महीने में कमाते हैं। विद्या अय्यर, इनकी भी कमाई जो है वो 1 करोड़ के करीब है, और इन्होंने अपना ये सिंगर है और अपना इन्होंने एक वीडियो चैनल बना रखा है। ये गौरव चौधरी साहब हैं, ये टेक्निकल गुरु कहे जाते हैं, कई सारे टीवी चैनल्स पर भी इनके प्रोग्राम आते हैं। ये जो नए नए गैजेट्स आते हैं उनको ये असेस करके और उसके बारे में बताते हैं। अब आप देखिए कि एक आदमी एक अपना YouTube पे एक वीडियो बना करके डालता है, और उस वीडियो को बना के डालने में उसकी कमाई महीने में 1 करोड़ रुपए है या 50 लाख रुपए है। तो और इसके लिए कोई आपको कोई दिन भर काम करने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी अ पार्ट टाइम, जो मैंने पहले शुरू में बात करी थी कि इट कुड बी पार्ट टाइम, इट कुड बी सिंगल मैन कंपनी। तो आप ये देखिए कि यूट्यूब जैसा काम या ब्लॉगिंग जैसा काम या इस तरीके के जो भी काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम, ये सारे काम आप अकेले बैठ करके भी कर सकते हो। ये निशा मधुलिका है, ये आपको अपना कुकिंग का चैनल चलाती हैं, और इनकी भी कमाई जो है वो 1 करोड़ रुपए है। अब बताइए, आप खाना बना रहे हो, खाना तो सब कोई बनाता है, सारी महिलाएं बनाती हैं, सारी लेडीज बनाती हैं,
लेकिन खाना कैसे बनेगा, कैसे टेस्टी खाना बनेगा, और उसका एक यूट्यूब बना करके चैनल चलाती हैं और 1 करोड़ रुपए महीने में कमाती है। कितना बढ़िया आइडिया है। ये सनम पुरी साहब हैं। सनम पुरी साहब भी जो है करीब 85 लाख 80 लाख कमाते हैं महीने में, और ये गाना गाते हैं, सिंगर हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो बनाने में आपका जो स्मार्टफोन है या आपके पास लैपटॉप है, खाली वो बना सकता है। शर्त केवल एक है, शर्त ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, वीडियो बनाने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी कमाई इतनी नहीं होती। किसकी हो रही है? जो कस्टमर की नीड समझ सकता है, कस्टमर क्या चाहता है ये समझ सकता है, उसमें वैल्यू ऐड कर सकता है, उसको इंटरेस्टिंग ढंग से प्रोड्यूस कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये तो 5 तो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से लगा करके और कई लाख रुपए महीने तक कमाते हैं। तो ये इवन इस तरीके की भी संभावनाएं हैं कि जैसे आजकल आपने देखा होगा यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आता है। तो कोई आप किसी, मान लीजिए आप अलीगढ़ में रहते हो या आप कहीं और आजमगढ़ में रहते हो, गोरखपुर में रहते हो, वहां का कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कोई बनता है और बहुत फेमस प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग शुरू कर दो। उसको फ्लिपकार्ट पे लगा दिया, उसको हमने अमेजन पे लगा दिया, एंड इट कुड बी 1 मैन जॉब। आप वहीं रहते हो, आपके पास ऑर्डर आता, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास ऑर्डर आया, आपने माल परचेज किया, आपने उसको कुरियर कर दिया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कहीं काम भी कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, एंड इट कुड बी पार्ट टाइम जॉब। आपके साथ में आपके भाई हैं, बहन है, कोई छोटा, तो आपके पास ऑर्डर आया, उसने देखा, उसने कहा अच्छा भाई ठीक है 4 पीस बनाओ, इस ऑर्डर पर प्लेस करो। तो इस तरीके की संभावनाएं भी अब शुरू हो गई हैं विद दिस ई एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए मैं ई एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, नॉट दी ब्रिक मॉडल एंटरप्रेन्योर। अब क्या क्या चीजें हैं जिससे हमको अपने आइडिया वैलिडेट करना आ गया, हमने सारी कैसे कर सकते हैं वो समझ में आ गया। नाउ शुरू करना है तो हमको क्या क्या सवाल अपने आप से पूछने होंगे कि भाई हम ये क्यों शुरू करने जा रहे हैं, व्हाई आई एम स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो अब इसका जो पहले हमने सबसे पहले आपको एक स्क्रीन दिखाई थी, वो उसका पहला सवाल था कि ये पैशन के लिए या प्रोफेशन के लिए। बिजनेस आपका ये प्रोफेशन भी हो सकता है और ये पैशन भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप गोरखपुर में रहते हो, आप आजमगढ़ में रहते हो, या आप और कहीं रहते हो, बनारस में रहते हो, वहां पर कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो ये आपका एक पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है। ये पैशन हो सकता है कि भाई हमें जो हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं लोग, जो लोअर स्टार्टर के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा इस बात को नहीं समझते हैं और हम इस बात को समझते हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में मदद करेंगे। तो ये एक तरीके का आपका ISR भी हो गया, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कंपनी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, आप इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, यानी आप उस आदमी को हेल्प कर रहे हैं और आप अपने पैसे भी कमा रहे हैं, और अकेले दम पे कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बहुत सारे लोग नहीं है, तो वहां से भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी जो कारीगर है, क्राफ्ट बनाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाता है, और वो उसको नहीं पता कि कैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, तो हम उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में हम कस्टमर्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उसको जेन्युइन चीज, टाइम पे चीज, और बढ़िया से बढ़िया चीज, इसके पहले की मार्केट में कोई बड़ा कस्टमर ले जा करके अपनी दुकान के अपने उसके थ्रू रखे, अपने चैनल के थ्रू रखे, उसने आज प्रोड्यूस किया और हम इसको कल जो है वो अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे डाल सकते हैं बेचने के लिए। तो व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग? आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ए द हैंडीक्राफ्ट पर्सन एंड कस्टमर्स प्रॉब्लम की उसको हम बढ़िया से बढ़िया चीज जल्दी से जल्दी टाइम में पहुंचा सकते हैं। अभी बाथरूम हो क्या है, कह रहे कि हम हाथ मुंह धुलने जा रहे हैं, अभी मम्मी बुलाई पीपे बने के लिए, अब जा रही हाथ मुंह धुलने, कह रही। आप बंद करिए इसको। कौन सी खिड़की के पास खड़ी है? Keep yourself mute, everyone, please. Now the question is, have other attempted to solve the problem before? और उन्होंने वो सक्सेस हुए कि नहीं हुए? तो ये बेसिकली जब आप आइडिया वैलिडेट करते हो या हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब आप इसका असेसमेंट करते हो, तब आप ये चीज देख सकते हो कि भाई दूसरे लोगों ने भी इस तरीके से काम शुरू किया, क्या शुरू किया तो उनका काम सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या कारण थे जिसकी वजह सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर वो कारण आपको पता लग जाए तो आप अपने काम में जो है
उन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हो कि भाई हम ये सावधानी रखेंगे क्योंकि ये काम पहले कोई कर चुका है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको अपने काम को सक्सेसफुल करने के लिए हम इन कामों के लिए सावधानी रखेंगे। फिर जो चौथा पॉइंट है इसमें, डू आई हैव ए मेंटर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट दैट आई कैन कॉल ऑन। आप जब ये काम करें तो हो सकता है कि आपको उस हैंडीक्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, या आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो इंटरनेट के बारे में जानकारी ना हो, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपके साथ हो, कोई ऐसा बंदा हो जो इंटरनेट के बारे में जानता हो, ताकि जहां कहीं आपकी गाड़ी फंसे, जहां कहीं आप फेल होने का चांस हो, या जहां कहीं आप सर्व नहीं कर पा रहे हो, वो आदमी आपको मदद करे, आपकी गाइड करे। वो आपसे पैसे भी चार्ज कर सकता है और फ्री में भी कर सकता है, दोनों तरीके से कर सकता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। व्हेन यू आर अर्निंग मनी देन यू कैन शेयर योर रेवेन्यू विद हिम आल्सो। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई एक आदमी कम से कम हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट या ऐसा हो जो हमारे, जिससे हम कभी भी बात कर सके, पूछ सकें। मैं आपके जो लोग भी हैंड रेस कर रहे हैं उनके क्वेश्चन एक बार अपना ये पूरा करने के बाद उनके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। एंड हु इज माई आइडियल कस्टमर, किनके बीच में हमें जाना है, किनको हमें बेचना है अपना सामान, उनके बारे में हमें जानना, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना, और उनकी रिक्वायरमेंट जान करके उनका क्या टेस्ट है, किस तरीके का, कि जैसे मान लीजिए आप बनारस का कोई सामान बेच रहे हो तो किस मार्केट में बेच रहे हो, अमेरिका की मार्केट में बेच रहे हो, हिंदुस्तान की मार्केट में बेच रहे हो, यूके की मार्केट में बेच रहे हो, या और कोई मार्केट आपने देखी अफ्रीका की मार्केट में बेच रहे हो, तो वहां के कौन लोग हैं, उनका क्या कस्टमर का टेस्ट है, उनकी क्या पेइंग कैपेसिटी है, किस तरीके के प्रोडक्ट वहां पर लगते हैं, ये थोड़ी सी आपको जानकारी अपनी कलेक्ट करनी पड़ेगी बिफोर यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। तो दीज आर द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क। और कंपटीटर कौन है हमारे, अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमारे जैसे काम कोई और भी कर रहे हो लोग, तो वो लोग कौन है और उनकी प्राइस क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, अगर ये इसके बारे में थोड़ा पता लग जाए तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Then what makes my business idea different from other business ideas? ये अपने इसको आपको असेस करना है कि भाई बिजनेस आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के पास आते हैं और हो सकता है जो काम आप कर रहे हो वो कोई नया काम ना हो, तो आप जो काम कर रहे हो वो दूसरे लोगों के काम से डिफरेंट कैसे है, व्हाट इज बेटर इन इट, जो दूसरे लोग कर रहे हैं और आप जो कर रहे हो उसमें क्या कोई फर्क है, कोई उससे बेटर आइडिया है, तो ये जानना जरूरी है। व्हाट मेक्स माय बिजनेस आइडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस आइडियाज, एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ माय प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी हम सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसके क्या की फीचर्स हैं और हमारी क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और हमने शॉर्ट एनालिसिस करी है क्या, शॉर्ट एनालिसिस क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, और हमारे वहाँ थ्रेट्स क्या हैं, कौन कंपटीटर हैं, उस देश की पॉलिसी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए श्रीलंका में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इस तरीके की भी जो सिचुएशंस हैं उनका एक असेसमेंट रहे कि वहाँ की लोकल कंडीशंस कोई ऐसी ना हो कि जो आपको थोड़ी देर आपने काम किया और उसके बाद में आपकी काम को जो है वो फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, काम रुकना शुरू हो जाए, है ना। तो ये शॉर्ट एनालिसिस एक बार कर लेनी है। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द मार्केट दैट दे विल बाय माय प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या वो जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, जिस मार्केट को आप टारगेट बना रहे हो, उस मार्केट में इतना पोटेंशियल है क्या, जिस आप प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो या जो लेवल आप अचीव करना चाहते हो उतना बड़ा मार्केट है क्या। ऐसा तो नहीं है कि वो मार्केट ही बहुत छोटा है या मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बिकने की संभावना कम रहेगी। तो ये जो पॉइंट है इसको भी अपने कंसीडर करना है। दीज आर द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इंडियन सोर्स ऑफ आइडियाज, आइडियाज भी जो कहाँ से मिल सकते हैं। कुछ आइडियाज आपके पास होते हैं और कुछ आइडियाज आप कहीं और दूसरी जगहों से ले सकते हो। देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जैसे entrepreneurship.org है, esell.in है, प्लग्ड इन वेबसाइट है, इंडीड करके वेबसाइट है। देन देयर आर 15 बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज इन इंडिया फॉर 2023। इस तरीके से ये तमाम सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप आइडिया ले सकते हो, उन आइडियाज को आप वैलिडेट कर सकते हो, क्या चीज आपको सूट करती है, आप कहाँ पर अपना काम, वेयर डू यू स्टैंड, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आप किन चीजों पे काम कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको कौन सा आइडिया सूट करता है। तो अपना आइडिया तो आता ही है, तमाम सारे नए आइडियाज भी आपको यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगे।
दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। यहाँ पर भी आपको आइडियाज मिलेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, गुड बिजनेस आइडियाज। यहाँ पर आपको आइडियाज मिलेंगे। yourstory.com की मैंने आपको श्रद्धा शर्मा की स्टोरी बताई, वहां पर भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का डिटेल्स आती रहती हैं। उन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वहां से भी आप सीख सकते हो। नाउ देयर आर सम इंटरनेशनल साइट्स आल्सो, जहां पर आपको ये आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इनके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्नर, इनकी वेबसाइट पर एक स्पेस है, वहां पर भी बहुत सारे ग्लोबली आइडियाज आते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि जो कोई ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है, कोई और कहीं का बच्चा है, वो जो आइडियाज वहां पर बता रहा है या जिस पे काम कर रहा है, क्या उसको कस्टमाइज करके आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हो? तो इस तरीके से भी आप आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज है, वहां पर भी इनका जो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है, वहां पर बहुत सारे लोग अपना काम जो कर रहे हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। तो दैट कुड ऑल्सो बी योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपको वहां से आइडियाज मिल सकते हैं। फिर सवाल ये है कि अगर छोटे मोटे पैसे लगाने हैं, 10-20 हजार, 50 हजार, 10 लाख, 2 लाख रुपए, तो आप अपने लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका आइडिया बड़ा है, आपको कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, तो दीज आर दी वेबसाइट्स, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन हेल्प यू गेटिंग दी फंड्स, जिनके पास आप अपने आइडिया को लेके जा सकते हो, या आपका जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनके पास जा सकते हो। क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, क्या उसका रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम वगैरह बनेगा, क्या आपका मॉडल है, ये सारी बातें आप जाकर के वहां पर डिस्कस कर सकते हो। ये कुछ किताबें हैं जो आपको हेल्प करेंगी सीखने में। तो ये मैडम जो है वो रश्मि बंसल मैडम, इन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA किया, और इसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। ये 2 किताबें मैं इनकी लिखी हुई आपको बता रहा हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स और स्टे हंग्री स्टे फूल्स। इन दोनों किताबों में 25 एंटरप्रेन्योर्स, उनकी स्टोरीज हैं। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कैसे उन्होंने कितना फाइट करके और अपनी जगह बनाई और आज सक्सेसफुल होकर के खड़े हुए हैं। आप अगर इनको पढ़ोगे और उनके संघर्ष की स्टोरी आपको पता लगेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आइडिया लगेगा कि भाई क्या क्या किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, एंड डिस्पाइट ऑल दोस प्रॉब्लम्स दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो ये 2 किताबें मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, जो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और एंटरप्रेन्योर ना भी बनना हो तो भी आप, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आज आपने ये वेबिनार अटेंड किया और कल आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अगर आप के दिमाग में एक आइडिया है कि हमको ये करना है समडे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो भी आप इस चीज पर अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं, विच में फ्रक्टिफाई आफ्टर सम टाइम। Then there are some more good books which if you read, then you will know what how the ideas and what are the problems which you are likely to face. These are the books, Rich Dad, Poor Dad. This is a very good financial management book. पैसे के कैसे कमाए जाएं उसके बारे में किताब है। 7 Habits of Highly Successful People, The Magic of Thinking Big, How to Win Friends and Influence People। क्योंकि जो भी सारा आपका बिजनेस है उसकी सफलता जो है वो केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि what kind of human relation you can maintain and what kind of human relation management you can do. This is the iconic book by Dale Carnegie, written in the decade of 50s, 1950 around, How to Win Friends and Influence People. They're a wonderful book. Then this is a book, Fred Factors, how you can be good to others, and being good to the others also creates a good vibration and good relationship. So आपकी सक्सेस जो है, कहते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आप कितना अच्छा नेटवर्क बना पाते हो, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी। और उस काम को करने के लिए ये किताब बहुत हेल्पफुल है, फ्रेड फैक्टर, रिवोल्यूशनरी वेल्थ। और वॉरेन बफेट का नाम तो सब लोग जानते हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में अरबों रुपए कमाए हैं। चिकन सूप फॉर द सोल, ये अलग अलग लोगों के लिए स्टोरी है कि आप क्या करते हो और कैसे कैसे उन पर्टिकुलर लोगों के बीच में क्या क्या चीजें हुई, उस बारे में एक चिकन सूप फॉर द सोल। दिस इज अ वंडरफुल बुक। द वर्ल्ड इज फ्लैट, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, जो कि आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हो।
This is my number, and my company website. So now it is 7 o'clock. So I'm finishing with these words for my presentation. Now we are open for the discussion. तो जिन लोगों ने अपना चैट में सवाल लिए हैं, मैं एक एक करके देखता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एक अमिताभ साहब ने लिखा है, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। वेरी गुड। आई अपलोड मेडिटेशन साउंड वीडियो जस्ट एज ए साइड हसल। वेरी गुड। तो कोई सवाल आप लोग कोई पूछना चाहते हो, कोई करना चाहते हो? अपना वीडियो आप लोग, अपना माइक और वीडियो ऑन करिए एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नो क्वेश्चन? Hello, sir. Please Hi. show once again. Sir, please show once again the PPT, which is having book's name, please. मैं आपको बुक का नाम बताऊं। वैसे मैडम ये जो रिकॉर्डिंग है ये उस पर डाल देंगे हम अभी यूट्यूब पर। Okay, तो sir. अगर आप यूट्यूब देखेंगे ना तो उसमें आप पॉज करके आप वो किताबों के नाम नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, अभी ये हम लोग अभी इसको जो हमारे आज डिस्कशन हुआ है, विल पुट दिस ऑन द यूट्यूब चैनल। Okay, sir. Thank you. अब मैम कहाँ पे काम करती हैं? सर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर लेक्चरर वर्क कर रही हूँ सर। कानपुर में? यस सर। और आई बिलोंग टू कानपुर। वेरी गुड सर। मैंने मेरी भी पढ़ाई बेसिक डिग्री कॉलेज हुई। आप किस कॉलेज में हो? सर मैं कैंपस में हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी कैंपस में। ओके ओके। और कोई? देखो 30 बच्चे हैं, वो सब अलग अलग है यार, कोई जानने वाला नहीं लग रहा उसमें। कोई और सवाल? Sir, my name is Avantika. बताइए बताइए अवंतिका। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। सर मैंने अभी 1 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने एक सेशन लिया था, मूवर सेशन, जिसमें काफी लोग आए थे। तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने पीपीटी के थ्रू उसमें एक्सप्लेन की। तो एक ऐसा भी टर्म आया कि एंटरप्रेन्योरशिप होने का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ हमारा फायदा हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर होने का मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा जो वर्क है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप होने का मतलब ये है कि हम जो वर्क कर रहे हैं उससे हमारा फायदा हो, साथ ही में हमारे सोसाइटी का भी फायदा हो। करेक्ट, दैट इज ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारा फायदा हो और हम अपने लिए वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। देन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे कि एडवांटेजेस और चैलेंजेस हमने बताए थे। एडवांटेजेस में ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में फ्री होते हैं, लेकिन चैलेंजेस, हाँ, हम फ्री होते हैं लेकिन हमारे ऊपर एक तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फायदा होता है, ठीक है, इकोनॉमिकली, लेकिन कभी कभी हमें उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों चीजों को देखने के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो लॉस जब हो रहा है तो उसको भी हमें संभालना पड़ेगा। करेक्ट। और जहाँ हम लिमिटेड टाइम में वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें मोर देन अपने टाइम से ज्यादा भी वर्क करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं।
जैसे मैंने जब 12th पास आउट किया था, तो मैं तो अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। मैंने जब 12th पास किया था उस टाइम में कोविड टाइम था, जिसमें कि सर जस्ट अ मिनट, जिसमें कि बहुत लोग के जो भी वर्क थे वो छूट गए थे। तो उस वजह से जो हमारी कॉलोनी के बच्चे थे, जो हमारे आसपास के थे, उनका स्कूल भी छूट गया, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तो उसके वजह से हुआ ये कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें जो लेके सीरियस थे, और कुछ बच्चे नहीं जा पाए। ठीक है, तो कम करें सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, असल में बीच में कुछ और भी लोग आ जाते हैं ना। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, आप थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, अभी लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो मैंने उस टाइम मतलब लॉकडाउन था, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया था। तो मैंने 5 बच्चों से शुरू, पहले एक बच्ची को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, तो 5-6 बच्चे ऐसे, उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीज सबको समझ में आने लगी, तो मेरे पास 30 to 40 स्टूडेंट्स हो गए, जो कि मुझे पे पे आते थे वो बच्चे। तो 1-1.5 साल करीबन मैंने इन बच्चों को पढ़ाया अपने घर पे बुला के। जैसे कि मैंने 10 बच्चे पढ़ाए, फिर आधे घंटे का टाइम दिया, फिर तो ऐसे मेरा पूरा दिन बीत जाता था। फिर उसके बाद उनके एडमिशन्स हो गए, बच्चों को मैंने अलग अलग, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई थी। फिर मैं इस वक्त में 9 to 12 बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। नहीं तो ये अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। और ट्यूशन पढ़ाना, ऑनलाइन ट्यूशन जो है, ये इट कुड बी वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो इस टाइम मैं 9 to 12 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ICSE CBSE पढ़ाती हूँ। ठीक है, थैंक यू इनका। ये विकास जायसवाल जी है, ये पूछते हैं हाउ टू अप्रोच इन्वेस्टर फॉर इनिशियल फंड्स। विकास जी, कैन यू ऑन योर वीडियो? विकास जायसवाल जी हैं? Yeah, actually, sir, my video cam is not working in my laptop. अच्छा, ओके, mind. कोई बात नहीं। विकास, ऐसा है कि जो इनिशियल फंडिंग की जहां तक बात है, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपका आइडिया रेडी है क्या, आर यू इन अ पोजीशन टू डिस्कस इट। दूसरी बात ये है कि वो जो आइडिया है वो क्या है, मतलब इज इट कॉमर्शियल आइडिया फॉर कॉमर्शियल एंटरप्राइज, और इट इज फॉर द सोशल एंटरप्राइज। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर कॉमर्शियल आइडिया है तो उसका फंड, और जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडिया है तो उसके लिए फंड के लिए देयर कुड बी डिफरेंट मेथोडोलॉजी, देयर कुड बी डिफरेंट सोर्सेज। छोटा फंड चाहिए तो आजकल एक कहते हैं जिसको क्राउड फंडिंग, सुना ना? क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि लोग बहुत बड़ा पैसा नहीं इकट्ठा करते, उसमें 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए अगर इकट्ठा करने हैं तो उसमें इकट्ठा हो सकते हैं, और उसमें थोड़े लोग जो है वो 500-500 हजार रुपए करके लोग डोनेट कर देते हैं। अगर कोई आइडिया पसंद आ जाए कि आप ये करना चाह रहे हो और आपको इसको करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्राउड फंडिंग का देयर आर सर्टेन, आप गूगल पे करोगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्राउड फंडिंग में मदद करती हैं। आप उनको अपना आइडिया शेयर करो, वो आपके अपने जो उनका ग्रुप है उसके बीच में वो आपके आइडिया को फ्लोट कर देंगे, एंड यू कैन गेट मनी फ्रॉम देयर। और वहां पर वो जो भी इकट्ठा होता है उसका वो सर्टेन परसेंटेज, 5-10% वो अपना चार्ज करते हैं सर्विस फीस, और बाकी पैसे वो आपको दे देते हैं। तो बहुत जो छोटे पैसे हैं, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए अगर करने हो कलेक्ट, तो दिस कुड बी द मेथड। और अगर इससे ज्यादा अगर कोई कॉमर्शियल आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, तो उसमें पहले पैसे तो आपको अपने जो शुरू के जो 1,50,000 रुपए हैं, दैट यू नीड टू कलेक्ट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जो आपको जानते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जिनको ये है कि यस विकास जी इज रिलायबल पर्सन और ये कुछ करना चाहते हैं और कर लेंगे, जिनको ये विश्वास है। तो शुरू के पैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तो आपको वहां से इकट्ठे करने पड़ेंगे। और अगर आप वो इकट्ठे हो जाते हैं आपके, और आप उस आइडिया पे काम करते हो, और उसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि आइडिया रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, है ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, POC कहते हैं, तो अगर वो लेवल तक पहुंच जाता है, देन यू कैन अप्रोच टू दी वेंचर कैपिटलिस्ट,
जो लोग उसमें वेंचर कैपिटल में भी 3 स्टेजेस हैं, आइडियाज को भी फाइनेंस करने वाले लोग हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी फाइनेंस करने वाले लोग हैं, और फिर जब आपका वेंचर बड़ा हो जाए तो उसको भी फाइनेंस करने वाले लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आइडिया किस स्टेज में है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट ऑब्जेक्टिव यू वांट टू सर्व, हु आर योर कस्टमर्स, हु कुड बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज है आपके पास तो आप हमको उसके बाद में आप डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के बाद, तो हम आपको बता सकते हैं, या आप ईमेल भी लिखेंगे हमें तो हम आपको जवाब देंगे। ठीक है विकास जी? Okay, sir, actually during this call I was trying to connect you over the LinkedIn. Okay, so does the same name available over the LinkedIn, Real Edutic Private Limited, or there is different one? It is same. Okay, so actually sir, there are a lot of chain of questions which is related to this topic. So I'll try my best to connect you over the LinkedIn or the whatever the mail which you have mentioned over there. Okay, I'll try to connect you over the mail so that because I have a concrete idea with the proper planning and other things. Okay, I want to move forward with this, but problem is that whenever I try to move on another step, I have a few lack of expertise in the idea. Okay, I don't know how to handle or tackle the upcoming challenges to me, because I have expertise in my own field, but I don't know how to overcome with the different one. Okay, so I'll try my best to connect you over the mail. विकास, इसीलिए मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया उसमें मैंने एक चीज कही कि एक मेंटर जरूर होना चाहिए जो आपको इन सारी चीजों के ऊपर मेंटरिंग करे, है ना? Right. आप हमें अगर आप अप्रोच करेंगे, आप हमको राइट करेंगे या फोन करेंगे, फोन के बजाय आई वुड प्रेफर कि यू कनेक्ट मी ओवर दी व्हाट्सएप, क्योंकि फोन कई बार उठता नहीं है अननोन कॉल्स का, है ना? Yes sir. तो So how can I get your कनेक्ट WhatsApp करेंगे, हम contact? आपको जरूर मेंटरिंग जो जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी वी विल डू मेंटरिंग फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं जानना चाह रहा था आपके WhatsApp तक हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सएप का नंबर हमने दिया हुआ, जो रेल एडुटेक के पर हमने जो नंबर दिया हुआ है, हाँ जी, वो नंबर है हमारा उस पे, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो 9811113345। आई कैन पुट इट ऑन द chat box. that will be more convenient for us. I have put my number in the chat box. Anybody who is wanting to ask some questions or anything, he can contact me on these numbers. You connect me over the WhatsApp, give your introduction on the WhatsApp, and then you can expect my reply maybe in 4 or 5 hours. Okay? No issue, sir. Thank you very much for your knowledgeable experience. That will gonna to help me a lot, and I'll try my best to connect you over the WhatsApp. Thank you very much, sir, for your time. Thank you, Vikas. Thank you. Thank you. Anybody else? Prashant, you are wanting to ask something? Hello. So if there's no question, I think I can finish it now. Yes, All I right. think no one have Anybody who's questions. interested, you can write mail also. Yeah, क्या कह रहे हो? I think no one have question. We can now close after 1 minute, 2 minutes. हाँ, ये हमारा Anyone नंबर है, have, किसी please को put your hand व्हाट्सएप में and ask the कनेक्ट करना हो question. तो कनेक्ट कर सकता है. You can ask question thereafter also. Okay? Yes. So let us finish it. Goodbye to all.